Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. I hope you all have enjoyed your holidays. Now again we are back with our studies, and today I am going to explain you some numericals of chapter rectification of error. Some I have completed earlier before your holidays. I have started this chapter. Some numericals and theory part has been completed in that lecture. That was lecture number 51. Now in lecture number 52 I am going to explain you numericals of one two-sided errors. See question number 5. Rectify the following transaction, following errors. Goods for rupees 5500 were purchased from modern traders on credit, but no entry has been passed. जब भी बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं होती, we have to pass the general entry only. So that should be purchase account debit to modern traders 5500. Credit purchase from modern traders were omitted to be recorded. This transaction is omitted to be recorded. I explained you earlier also. Rectification का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पे भी कोई भी wrong posting है, omitted to be recorded है, तो you have to rectify in the books of account. Now see the number 2. Purchase return for 1500 were not recorded in the books. It means यहाँ पे भी आपको omitted to be recorded है. Entry should be passed. Creditors account debit to purchase return account 1500. Purchase return of rupees 1500 was not recorded in the books. Now see third point beta. Goods for rupees 2000 sold to Geeta traders on credit were entered in the sales book as rupees 200 only. This is beta undercasting. 2000 के goods को आपने 200 एंटर कर लिया. इट मीन्स 1800 से आपका क्या हो गया, अमाउंट कम पोस्ट हो गई है. तो आप इसमें जनरल एंट्रीज पास कर देंगे. शॉर्ट डेबिट और शॉर्ट क्रेडिट दोनों के अकाउंट में हुआ है, तो एंट्री शुड बी गीता ट्रेडर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दैट इज 1800. नाउ सी नेक्स्ट बेटा. Fourth point. Goods of value of rupees 1800 returned by Sunil and company were included in stock but no entry was passed in the book. ये भी omitted to be recorded है. Goods return हो गए, sales return हुआ 1800 का, लेकिन उसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा है. तो entry should be sales return account debit to Sunil and company 1800. Goods returned by Sunil and company were omitted to be recorded in the books. Now see the next point. Goods purchase for rupees 900 entered in the purchase book as 9000. 8100 से एक्सेस अमाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रखी है बेटा इसमें, तो ये रिवर्स हो जाएगा. एंट्री शुड बी परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट. एंट्री देखो इसकी जो है आपकी रिवर्स एंट्री आ जाएगी, दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 8100 बिकॉज एक्सेस डेबिट हो गया था. 9900 होना था, 9000 कर दिया परचेज अकाउंट में, तो 8100 से अमाउंट एक्सेस डेबिट हो गई, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया 8100 से और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो गया 8100 से. रेक्टिफाइंग एंट्रीज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 8100. Now see next point. An invoice for goods sold to X was overcast by 100. ये भी ओवरकास्टिंग ऑफ एरर है, तो इसमें भी रिवर्स एंट्री हो जाएगी. एंट्री शुड बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू X 100, क्योंकि आपने जो है उसको रॉन्ग कास्टिंग कर दी थी, दैट इज ओवरकास्टिंग हो गई थी. सेल्स अकाउंट डेबिट टू X 100. Now see the next question beta. Question number 7. Give general entries to rectify the following errors. Goods purchased from Ajay for rupees 2600 were recorded in sales book by mistake. Ajay to purchase account debit to Ajay, that should be the correct entry. Wrong entry के पास हो गई. Ajay debit to purchase account, it means Ajay के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होनी थी, डेबिट हो गई, और परचेज अकाउंट में अमाउंट आनी थी, नहीं आई. सेल्स अकाउंट में अमाउंट एक्सेस क्रेडिट हो गई. तो आप इसको रिवर्स कर देंगे बेटा, जो एक्सेस डेबिट है उसको बैलेंस बना देंगे विद अजय's अकाउंट. सी परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट to Ajay 5200. 2600, 5200 goods purchased from Ajay were recorded in sales book. Now see second point. Goods for rupees 4400 sold to Surendra was passed through purchase book. 4400 का गुड्स जो सुरेंद्र को सोल्ड करा था उसको परचेज बुक से पास कर दिया, तो एंट्री शुड बी सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट 8800. 4400 उसका बैलेंस हो गया. 4400 परचेज अकाउंट में एक्सेस डेबिट था, क्रेडिट हो गया. अजय का सुरेंद्र का अकाउंट एक्सेस क्रेडिट होना था, डेबिट हो गया, तो 4400 से वो बैलेंस हो गया. एंड देन जो था आपका वो जनरल एंट्री पास हो गई, सुरेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट. Now see the third point. Our customer returned goods worth rupees 1000. It was recorded in purchase return book. Sales return book account debit, sales return account debit to customers account, ये होना चाहिए था. कर क्या दिया इन्होंने, customers account debit to purchase return account. It means ये भी आपका रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी बेटा, that is sales return account debit, purchase account debit to customers account. ठीक है, तो एंट्री इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट 1000 एंड 2000 की अमाउंट इसमें पोस्ट हो गई है. नाउ सी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा, दैट इज फिफ्थ वन.
So fourth one, a credit sale of rupees 126 to Rajesh was entered in the books as 162. 36 रुपीज़ से अमाउंट एक्सेस क्रेडिट हो गई है इन सेल्स अकाउंट एंड राजेश के अकाउंट में एक्सेस डेबिट हो गई 36 से, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी बेटा. एक्सेस डेबिट क्रेडिट मैंने अभी आपको बताया था, एंड एक्सेस क्रेडिट डेबिट. तो एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजेश 36. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजेश, दैट इज 36. ये एंट्री रिवर्स हो गई. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट बेटा. Rent of proprietor's resident, fifth point beta, sales of old chair and table for rupees 700 was treated as sales of goods. Entry should be, correct entry should be cash account debit to furniture account. कर क्या दिया उन्होंने, wrong entry is passed, cash account debit to sales account. It means sales account excess credit and cash वो excess credit हो गया है और furniture account short credit हो गया, तो entry reverse हो जाएगा. sales return sales account reverse हो जाएगा. entry sales account debit to furniture account 700. Sale of furniture was recorded as sales of goods. ठीक है. Now see the next point बेटा. Sixth point, rent of proprietor's residence rupees 800 debited to rent account. Entry should be drawing account debit to cash account 800. कर क्या दिया, rent account debit to cash account 800. It means drawing account शॉर्ट डेबिट हो गया एंड रेंट अकाउंट एक्सेस डेबिट हो गया, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी इसके रेक्टिफिकेशन में, दैट इज ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. सी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 800. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Rectify the following errors. Furniture purchase for rupees 10,000 wrongly debited to purchase account. Correct entry should be furniture account debit to cash account. 10,000 रॉन्ग एंट्री के पास कर दी. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000. फर्नीचर अकाउंट शॉर्ट डेबिट, परचेज अकाउंट एक्सेस डेबिट, रिवर्स हो जाएगा. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000. नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट. बी, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन फॉर रुपीज 20,000 वॉज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक एंड करेक्ट एंट्री शुड बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000. रॉन्ग एंट्री के पास कर दी. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000. मशीनरी अकाउंट शॉर्ट डेबिट, परचेज अकाउंट एक्सेस डेबिट, ये रिवर्स हो जाएगा. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 20,000. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट बेटा. सी पॉइंट, रिपेयर ऑन मशीनरी रुपीज 1,400 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. एंट्री शुड बी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,400. एंट्री गलत, रॉन्ग एंट्री के पास कर दी. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,400. रिपेयर अकाउंट शॉर्ट डेबिट हो गया 1,400 से. मशीनरी अकाउंट एक्सेस डेबिट हो गया 1,400 से. इट मीन्स मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. एंट्री विल बी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1,400. सी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, ये होगी, ये तो एंट्री तुमने पास करी थी बेटा. अभी आगे देखो. सी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1,400. नाउ सी नेक्स्ट वन बेटा. डी पॉइंट, रिपेयर ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज रुपीज 2,000 वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट. एंट्री शुड बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जनरल एंट्री ये पास होनी चाहिए थी. 2,000 कर क्या दिया. रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000. रिपेयर अकाउंट एक्सेस डेबिट हो गया, मशीनरी अकाउंट शॉर्ट डेबिट हो गया, तो एंट्री में रिवर्स हो जाएगा. दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट 2,000. Now see next point. Sale of old machinery at book value rupees 3,000 was credited to sales account. Entry should be machinery account debit to cash account. और क्या पास कर दिया, machinery account debit to sales account. वो सॉरी, बट entry should be cash account debit to machinery account 3,000. गलती से entry के पास कर दी. cash account debit to sales account 3,000. machinery account short credit and sales account excess credit हो गई, तो अमाउंट आपका रिवर्स हो जाएगा. तो entry will be machinery account debit, sales account debit to machinery account 3,000. Sale of old machinery credited to sales account. Now see question number 11 beta. Rectify the following errors. For rupees 4,500 spent on the extension of building were debited to repair account. Entry should be cash account debit to building account. कर क्या दे, repair account debit to वो कैश. एंट्री शुड बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कर क्या दे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इट मीन्स 4,500 के अमाउंट एक्सेस डेबिट हो गई रिपेयर अकाउंट में, और जबकि बिल्डिंग अकाउंट में शॉर्ट डेबिट है, तो एंट्री इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट 4,500. Now see second point, wages paid to the firm's own workmen rupees 3,600 for the installation of new machinery were posted to wages account. Entry should be machinery account debit to cash account 3,600. गलती से क्या पास कर दिया,
इंस्टॉलेशन अकाउंट मशीन वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3600 मशीनरी अकाउंट एक्सेस डेबिट हो गई है और वेजेस अकाउंट शॉर्ट डेबिट हो गया है। तो वेजेस तो इट मीन्स आपका जो था वेजेस अकाउंट में एक्सेस डेबिट हो गई अमाउंट और मशीनरी अकाउंट में शॉर्ट डेबिट हो गई है। तो एंट्री इज वेजेस सी machinery account debit to wages account 3600. Now see third point beta, contractors building for the construction of a godown at a cost of rupees 10,000 has been charged to repair account. Entry should be building account debit to cash account, कर क्या दिया, building repair account debit to cash account. बिल्डिंग अकाउंट एक्स शॉर्ट डेबिट हो गया और रिपेयर का अकाउंट एक्सेस डेबिट हो गया, तो इसमें भी आपका रिवर्स हो जाएगा बेटा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट 10,000. Now see next point. Rupees 1500 paid as wages to a worker Bahadur Singh has been debited to his personal account. Entry should be wages account debit to cash account 1500 कर क्या दिया, Bahadur Singh debit to cash account 1500. It means wages account short debit and Bahadur Singh excess debit, तो रिवर्स हो जाएगा, wages account debit to Bahadur Singh, that is 1500 and 1500. Now see fifth point beta, old furniture sold for rupees 500 has been credited to sales account. Entry should be cash account debit to sales account 500. कर क्या दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500 कर क्या दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 500. इट मीन्स फर्नीचर अकाउंट में शॉर्ट डेबिट हो गया और उसमें सेल्स अकाउंट में एक्सेस क्रेडिट हो गया, तो ये रिवर्स हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 500 इन द रेक्टिफिकेशन एंट्री, सेल्स अकाउnt debit to furniture account 500 and 500. Now see the last point. A check of rupees 620 received from Ram has been wrongly credited to Shyam. Entry should be bank account debit to Ram 620 कर क्या दिया इन्होंने, रॉन्ग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम 620. राम का अकाउंट शॉर्ट क्रेडिट है, श्याम का अकाउंट एक्सेस क्रेडिट हो गया, एक्सेस क्रेडिट डेबिट, श्याम डेबिट टू, एंट्री है श्याम डेबिट टू राम्स अकाउंट 620 and 620. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड बेटा, इसमें वही रूल्स फॉलो होना है, एक्सेस डेबिट क्रेडिट, शॉर्ट डेबिट इन रेक्टिफिकेशन, एक्सेस क्रेडिट डेबिट इन रेक्टिफिकेशन एंड शॉर्ट क्रेडिट इन रेक्टिफिकेशन. इसी की बेसिस पे क्वेश्चन होना है बेटा. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे. कंप्लीट ऑल योर वर्क इन योर कॉपीज.